नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाताय। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગાથા 120 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે। હવે આજે ગાથા 121 તથા 122 લઈએ છીએ। गाथा 121 ના उपोद्घातમાં કહે છે कि आगे जो विषयों में लीन है उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता ऐसा दिखलाते हैं। पांचे इंद्रियोना विषयों छे, अनेक विषयों छे, दरेक इंद्रियना अनेक विषयों छे। कोई पण विषयमां जेने रुचि छे, जेने एनी आसक्ति पड़ी छे, एनुं जे लक्ष्य करे छे एने पोताना आत्मानो अनुभव थतो नथी। अने ए वात अहींया आचार्य भगवान कहे छे। गाथा 121 यस्य अरिणाक्षी हृदये तस्य नायैव ब्रह्म विचारय एकस्मिन् कथं समायातौ वत्स द्वौ खण्डौ प्रत्याकारे। 121मी गाथाना अन्वयार्थमां कहे छे कि यस्य हृदये हरियाक्षी बसती, जिस पुरुष के चित्त में मृग के समान नेत्र वाली स्त्री बस रही है, तस्य ब्रह्म नैव, उसके अपना शुद्धात्मा नहीं है। अर्थात उसके शुद्धात्मा का विचार नहीं होता। ऐसा हे प्रभाकर भट्ट, तू अपने मन में विचार है, विचार कर। बत एकस्मिन् प्रतिकारे द्वौ खंडो कथम समायातौ। बड़े खेद की बात है कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती है, कभी नहीं समा सकती। एक म्यान में बे तलवार रही सके नहीं। आ न्याय छे। ए द्वारा समजाववुं ए छे के विषयनी रुचि विषयमां पण राची रहेवुं अने स्वरूपनी रुचि करीने स्वरूपमां एकाग्रता करवी, ए बंने शक्य नथी। शुं कहे छे कि जिस पुरुष के चित्त में मृग के समान नेत्र वाली स्त्री बस रही है, उसके अपना शुद्धात्मा नहीं है, अर्थात तो उसके शुद्धात्मा का विचार नहीं होता। ऐसा हे प्रभाकर भट्ट, तू अपने मन में विचार कर। बड़े खेद की बात है कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती है, कभी नहीं समा सकती। गुजराती में गाथा लईए। मृगाक्षी जेने ऊर वसे, त्या नहीं ब्रह्म विचार। म्यान एक मां बे असी, बस रहे केम धार। एना अर्थमां कहे छे कि जे पुरुषना मनमा हरिणाक्षी એટલે સ્ત્રી નિવાસ કરે છે, ત્યાં બ્રહ્મનો નિવાસ એટલે કે તે પુરુષને શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય? બ્રહ્મનો નિવાસ ન થાય એટલે
એને પોતાના શુદ્ધાત્મા, બીજું કોઈ બ્રહ્મ નથી, પોતાનું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. ત્યાં બ્રહ્મનો નિવાસ, એટલે તે પુરુષને શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય? એમ તું વિચાર કર હે વત્સ, એક મ્યાનમાં બે તરવાર કઈ રીતે રહી શકે? આગળ વિશેષ વિસ્તાર કરતા કહે છે કે સ્ત્રી આદિના રૂપ જોવાની ઈચ્છા, સ્ત્રી આદિના એટલે વિષયો, ઘણા વિષયો લઈ લીધા છે, અને જોવું એટલું જ નહીં, પણ પાંચેય ઇન્દ્રિયના વિષયો, એ જ પ્રકારે સાંભળવું, એ જ પ્રકારે સ્પર્શ, એ જ પ્રકારે સ્વાદ, એમાં બધી ઇન્દ્રિયોના વિષયો ને લેવાના છે. અહીંયા તો કે છે કે સ્ત્રી આદિના રૂપ જોવાની ઈચ્છા આત્માને આકુળતા ઉત્પન્ન કરનાર તથા અશુભ પરિણામનું કારણ છે. આકુળતા એ વખતે આકુળતા થાય છે અને આત્મપ્રદેશનું કંપન થાય છે, એટલે ખરેખર તો એ વખતે દુઃખ જ છે. તથા એમ કરતા એને અશુભ પરિણામ છે, અશુભ ભાવ છે, એટલે પાપના બંધ પણ પડે છે. કે છે કે તથા અશુભ પરિણામનું કારણ છે. તેથી જે પ્રાણી તેનું રૂપ જોવાને ઈચ્છે તેના હૃદયમાં નિર્વિકલ્પ સમાધિથી પ્રગટતી નિરાકુરતામય પરમાત્મા ભાવના કેવી રીતે હોઈ શકે? એને દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ વળી હોય અને નિર્વિકલ્પ સમાધિથી જે પ્રગટ થાય છે નિરાકુર, એવી પોતાના આત્માની અનુભૂતિ કેવી રીતે હોઈ શકે? એક મ્યાનમાં બે તરવાર રહી શકતી નથી, તેમ જ્યાં વિષય વિકાર છે ત્યાં બ્રહ્મ વિચાર ટકી શકતો નથી. જ્યાં વિષય વિચાર છે, વિષય વિકાર છે, એનું લક્ષ્ય છે, એવા વિકલ્પો છે, ત્યાં બ્રહ્મ વિચાર ટકી શકતો નથી. આત્માનો વિચાર ટકી શકતો નથી. બંનેમાં અરસપરસ વિરોધ છે. આની રુચિ છે, બહારની રુચિ છે, વિષયોની રુચિ છે, એને આત્માની રુચિ ક્યાંથી થાય? બંનેમાં અરસપરસ વિરોધ છે. તેથી બ્રહ્મ વિદ્યા અને વિષય વિનોદ એક ચિત્તમાં સાથે રહી શકે નહીં. જેને બ્રહ્મ વિચાર કે આત્મભાવથી અપૂર્વ આત્મશ્રેય સાધવું છે, તેણે વિષય વિકારને તજી દઈ એક શુદ્ધ સહજ આત્મરૂપ બ્રહ્માચર્યા રમણતા માટે, એક તુહી તું બ્રાહ્મી વેદના સ્વાનુભવ અમૃત રસના આહલાદ માટે પોતાના ચિત્તને બીજી સર્વ વાસનાથી રહિત શુદ્ધ નિર્મળ કરવું જોઈએ. બધી વાસના, પાંચેય ઇન્દ્રિયના વિષયો, એની ઈચ્છા, આસક્તિ, એના તરફનો રાગ, એનો મોહ, એમાં સુખની બુદ્ધિ, આ છોડવા જેવું છે. જ્યાં સુધી અંશ માત્ર પણ કોઈ પણ વિષયમાં સુખની બુદ્ધિ હશે, ત્યાં સુધી જીવ પોતાના સ્વરૂપ તરફ વળતો જ નથી. તો એ રીતે 121નો વિસ્તાર પૂરો થયો. હવે આપણે ગાથા 122 લઈએ છીએ. 122મી ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે कि आगे रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता है, ऐसा दिखाते हैं. रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता है. गाथा 122. निज मनसी निर्मले ज्ञानिना निवसति देव अनादि हंस सरोवरे लीन यथा मम ईदृश प्रतिभाति. 122મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે જ્ઞાનીના નિર્મલે
નિજ મનસી અનાદિ દેવ નિવસતી. એટલે કે જ્ઞાનીઓ કે रागादि मल रहित निज मन में अनादि देव आराधने योग्य शुद्ध आत्मा निवास कर रहा है. यथा सरोवरे लीनः हंस मम प्रतिभाति. जैसे मानस सरोवर में लीन हुआ हंस बसता है, सो हे प्रभाकर भट्ट मुझे ऐसा मालूम पड़ता है. ऐसा वचन श्री योगींद्र देव ने प्रभाकर भट्ट से कहा. શું કહ્યું કે જ્ઞાનીઓ કે રાગાદि मल रहित निज मन में अनादि देव आराधने योग्य शुद्ध आत्मा निवास कर रहा है. અને પછી ઉદાહરણ આપે છે કે જેવી રીતે કરીને ઉદાહરણ આપવું છે. એટલે કે છે કે જૈસે માનસ સરોવર में लीन हुआ हंस बसता है, सो हे प्रभाकर भट्ट मुझे ऐसा मालूम पड़ता है. ऐसा वचन श्री योगींद्र देव ने प्रभाकर भट्ट से कहा. ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ. રાગાદિ રહિત એવા પોતાના મનમાં પરમાત્મા વસે છે. જે રાગાદિથી રહિત છે એના મનમાં પોતાનો પરમાત્મા વસે છે. 122મી ગાથા ગુજરાતીમાં. જ્ઞાનીના નિર્મળ ઉરે વસે અનાદિ દેવ ભાસે માનસ રે મને લીન હંસ પરમેવ. એના અર્થમાં કહે છે કે જ્ઞાનીઓના રાગાદિ રહિત નિર્મળ મનમાં. જ્ઞાની કોને કયા? સમ્યક દ્રષ્ટિ છે તે જ જ્ઞાની છે. જેને આત્માની અનુભૂતિ થઈ છે તે જ્ઞાની છે. એવા જ્ઞાનીઓના અંતરમાં શું છે? એમના અંતરમાં તો પોતાનો આત્મા જ છે, બીજું કાંઈ નથી. જ્ઞાનીઓના રાગાદિ રહિત નિર્મળ મનમાં અનાદિ દેવ આરાધવા યોગ્ય શુદ્ધ આત્મા નિવાસ કરી રહ્યો છે. જો બધા સિદ્ધ સમાન છે, પૂર્ણ છે, પવિત્ર છે, બધા પરમાત્મા સ્વરૂપ છે, એટલે એમ કહેવાય કે બધામાં પરમાત્મા જ વસી રહ્યો છે. બરાબર છે. શક્તિ અપેક્ષાએ તો એમ કહેવાય. પણ એવું તો અનંત કાળથી છે, છતાં ક્યાં એને પ્રાપ્ત થયું છે? જે પ્રાપ્ત નથી થયું તો પછી એને છે એમ કેવી રીતે કહેવાય? એટલે જેણે પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા જ્ઞાનીને વિશે જ વાત કરાય કે એને એના આત્મામાં અનાદિ દેવ, અનાદિનો દેવ જે આરાધવા યોગ્ય છે એવો શુદ્ધાત્મા નિવાસ કરી રહ્યો છે. શુદ્ધાત્મા ભલે બધાના અંતરમાં છે, છતાં જેને એનું લક્ષ્ય જ નથી થયું એને ક્યાં છે? કેમ કે કોઈનો શુદ્ધાત્મા બીજા અન્યને ક્યાં કોઈ રીતે કાર્યકારી થાય છે? મારો શુદ્ધ આત્મા એ જ મને પ્રયોજનભૂત છે, એ મને કાર્યકારી થાય, પણ મારો શુદ્ધ આત્મા કઈ બીજાને કાર્યકારી પ્રયોજનભૂત કઈ થતો નથી. અને હું મારા શુદ્ધાત્માને પ્રગટ ન કરું, અને અનંત તીર્થંકર ભગવાનોએ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કર્યું, સિદ્ધ થયા, અનંત સિદ્ધ થયા. તેથી મને શું? હું મારા શુદ્ધાત્માને પ્રગટ કરું, પ્રાપ્ત કરું તો મને શુદ્ધાત્મા છે ને. બાકી જેમણે પ્રગટ કર્યું એમને એ છે, બીજાને એથી શું છે? એટલે અહીંયા એમ લીધું છે કે જ્ઞાનીઓને છે. કેમ કે એ જ્ઞાની છે, એમણે રાગની રુચિ છોડી દીધી છે, છૂટી ગઈ છે, રાગાદિથી રહિત છે. એ રાગાદિ રૂપ મલિનતા હવે એમને રહી નથી. એટલે જ્ઞાનીઓના રાગાદિ રહિત નિર્મળ મનમાં અનાદિ દેવ આરાધવા યોગ્ય શુદ્ધ આત્મા નિવાસ કરી રહ્યો છે. અને પછી ઉદાહરણ આપ્યું છે કે તે જેમ માન સરોવરમાં હંસ નિવાસ કરી રહ્યો હોય તેમ મને ભાસે છે, એમ યોગીન્દ્ર દેવ કહે છે. આગળ વિસ્તાર કરતા કહે છે કે નિજ શુદ્ધ સહજ આત્મદ્રવ્યની
સમ્યક શ્રદ્ધા અને સ્વાભાવિક જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન વિતરાગ પરમ સુખ સ્વરૂપ અમૃત રસ રૂપ નિર્મળ નીરથી ભરેલા જ્ઞાનીઓના ચિત્તરૂપ માન સરોવરમાં પરમાત્મા રૂપી પરમહંસ આત્મદેવ પરમ બ્રહ્મ નિરંતર નિવાસ કરે છે. તે આત્મદેવ નિર્મળ ગુણોની ઉજ્જવલતાથી હંસ સમાન છે. જેમ હંસનું નિવાસ સ્થાન માન સરોવર છે, તેમ બ્રહ્મનું નિવાસ સ્થાન નિર્મળ ચિત્ત છે. બહુ સરસ ઉપમાઓ આપી અને સ્પષ્ટ કરી દીધું. પરમાત્મા રૂપી પરમહંસ આત્મદેવ પરમ બ્રહ્મ નિરંતર નિવાસ કરે છે. જ્ઞાનીઓના ચિત્તરૂપ માન સરોવરમાં નિરંતર નિવાસ કરે છે. અને કેવો છે કે છે તો કે વિતરાગ પરમ સુખ સ્વરૂપ અમૃત રસ રૂપ નિર્મળ નીરથી ભરેલા જ્ઞાનીઓના ચિત્ત છે, એમાં એ નિવાસ કરે છે. તો એ રીતે 122મી ગાથા છે. તો ગાથા 121 તથા ગાથા 122 નો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 3, એના પાના નંબર 439. प्रकाश 121 गाथा. आगे जो विषयों में लीन है उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता. परमात्मा એટલે આત્મા. જેના હૃદયમાં विषयना प्रेमनी रुचि है उसको आत्मा का दर्शन नहीं होता, एम कहते हैं. हाँ हाँ, समझ में आया. 121. जसु हरिण थी विय वड़ी तसु नवी बंबू व्यारी एक केम सम्मति बट ये खंडा पड़ियारी. जिस पुरुष के चित्त में मृग के समान नेत्र वाली स्त्री वस रही है, जेना चित्त में मृगांक्षी स्त्री वस रही है, उसको भगवान परमात्मा का दर्शन कैसे हो? आत्मा हो. हम कहते हैं कि स्त्री का जिसको सुंदर आदि देखकर आकर्षण हो जाता है અને એ વિકલ્પની जाल में पड़ते हैं, उसको निर्विकल्प परमात्मा अपना स्वरूप कैसे नजर में आवे? समझ में आया. ब्रह्म विद्या ने विषय विनोद एक स्थान में कैसे रहे? ब्रह्म विद्या नाम भगवान आत्मा का आनंदनी विद्या आत्मज्ञान, और विषय विनोद एक म्यान में 2 तरवा रह सकती. समझ में आया. जिस पुरुष के चित्त में हृदय है ना, यस हृदय चित्त में हरिणाक्षी मृग के समान नेत्र वाली स्त्री मुसरी है, उसके अपना शुद्धात्मा नहीं विचार आता, उसके शुद्धात्मा का विचार नहीं होता. स्त्रीना सुंदर वेश आदि ने देखी, जिसको अंदर रुचि અને रस पड़ते हैं, उसको भगवान अंदर दर्शन नहीं देते. आत्मा का दर्शन नहीं होता उसको. समझ में आया. उसके अपना शुद्धात्मा विचार नहीं होता. ऐसा ही प्रभाकर भट्ट तो अपने मन में विचार कर. बड़े खेद की बात है
आचार्य कहते हैं आहा कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती है? म्यान एक ने दो तलवार कैसे रहे? आहा इसको जिसको स्त्री का विषय का प्रेम अंदर में है, आसक्ति दूसरी चीज, तो प्रेम रुचि की बात है। समझ में आया? आसक्ति तो संकीर्ति को भी होती है, ये आसक्ति दूसरी है, रुचि दूसरी है। समझ में आया? भरत चक्रवर्ती 96,000 स्त्री थी, पर मन में उसकी रुचि का प्रेम नहीं, रुचि का प्रेम नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं। आसक्ति हो अव्रत भाव, पर रुचि नहीं उसके अंदर, प्रेम न મળે। जिसका एक प्रभाकर भट्ट विचार करके खेद की बात है कि एक म्यान में दो तलवार के हिसाब से कभी नहीं समझ सकती। विस्तार करता है। वितराग निर्विकल्प परम समाधि कर उत्पन्न हुआ। अंतर में आनंद स्वरूप भगवान उत्पन्न होते हैं। राग रहित निर्विकल्प अभेद परम शांति कर उत्पन्न हो, अनाकुलता और परम आनंद। अतीन्द्रिय सुख अमृत, अपना अतीन्द्रिय आनंद का अमृत रूपी स्वाद आया। उसके रोकने वाला, ऐसा आनंद का अमृत का स्वाद को रोकने वाला। आकुलता को उत्पन्न करने वाले, जो स्त्री रूप को देखने की अभिलाषा से उत्पन्न हुआ, स्त्री सुंदर देखने की अभिलाषा। ये बात है, और प्रेम से देखने की इच्छा। तो भगवान आनंद का नाथ था, प्रेम रहा नहीं उसको। विषय छोड़ते हैं माटे विषय की आसक्ति रुचि गई, ऐसे नहीं। प्रेम जो है राग का रस है, ये पर विषय में रस है, रुचि है, उसका विषय का रस गई नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? इसका त्याग किया हो बाल ब्रह्मचारी हो, अपन अंदर में राग की प्रेम रुचि है, तो पर विषय नो प्रेम रुचि है अंदर। समझ में आया? यही बात है। श्रीमद राजचंद्र के छे ने उसका 16 वर्ष में मोक्षमाला में जे नववार विशुद्ध थी पाड़े विषय और सुखदाय भवते नो लव पची रहे तत्व वचन ए भाई। श्रीमद भैया राजचंद्र 16 વર્ષની ઉંમર, શરીરની ઉંમર એને આત્મા તો અનાદિ અનંત जवेरतना व्यापार था बड़ा लाखों में। कहा था ना एक बार, नहीं वो मोती की बात नहीं की थी, धंधा किया था तो साधारण मोती का धंधा था, उसमें ऊंचा मोती का पड़ी का दे दिया उसने, वो मोती वाला एक ऊंचा मोती जेमा लाखों रुपया कमाई वधी जाए ऐसा। तो अहिया घरे आया दुकानों पर, अरे आ नहीं, ये मानस मना आवशे, आ सौदा किया है नहीं, हम तो सादा मोती का सौदा था। धंधे में नीति कितनी है समकीर्ति की। समझ में आया? समकीर्ति का व्यवहार भी दूसरा हो जाता है। मूलचंद भाई लाखों रुपया की पैदाश में पड़ी गई, हम देखा अरे आ मोती तो सौदा किया नहीं, मैं तो सादा मोती का, ये आया एकदम मोती पड़ी का दिया था ना, जाने समझ में आया थे, मोती का धंधा किया था, बड़ा धंधा व्यापारी था। तो जिसके साथ सौदा किया था ये मोती आ नहीं, साधारण मोती ना था, ने उसने ऊंचा मोती कपड़ी का दे दिया श्रीमद को। दुकानों पर आकर देख रहे हैं, अरे
હમણાં આવો માણસ આવશે. આવ્યો, ભાઈ આપણે સોદા આ મોતી કા નહીં. અરે બાપા આ મોતી રહ્યા ભાઈ. અને એવડો ખુશી થઈ ગયો. આ તે દેવી પુરુષ છે, કોણ છે આ? જેને હાથમાં મેં દિયા એ કહેતી કે આ આપણા સોદા નહીં, તમારે લઈ લઈને. ક્યાં ધર્મ સાચા ધર્માત્મા હોય એવું કરતા, બાકી તો બધું સમજવા જેવું કરે. બધા ખબર પચાવી દે. લાખો રૂપિયાના મોટમાં પોતના મજા આવે, પચાવી દે જાઓ. નીતિ ધર્મી જીવની નીતિ પણ અલૌકિક હોતી. સમજમાં આયા? તો ખુશી થઈ ગયો. એમને પડીકો જ્યાં દઈ દઉં, લાવો બાપા આપણા જે મોતી દૂસરા થા ને લાવ लो भाई आने. हाँ हाथी देवी पुरुष है. कौन છે આ? जिसने मैं हाथी दिया था लाखों, उसने लिया ना था, मैं पड़ी का दिया था. ये कहीं नहीं आ नहीं आने. नैतिक जीवन भी धर्मात्मा का दूसरा होता है. हाँ हाँ हाँ. वो यहाँ कहते हैं वितराग निर्विकल्प प्रमाद परम शांति अंदर में. हाँ हाँ हाँ. राग रहित होकर अंतर में जते आत्मा में अनुभव अमृत का स्वाद आना, उसको रोकने वाला. आकुलता को उत्पन्न करने वाला, जो स्त्री रूप के देखने की अभिलाषा दिशा, देखने की अभिलाषा आदि से उत्पन्न हुई. हाव भाव शब्द ऐसा है, पर खरेखर तो हाव सामा स्त्री का लेना. आम तो ऐसा है उत्पन्न हुए, खरेखर तो उत्पन्न हुए क्या? स्वरूप विकल्प जाओ कर मूर्छित, क्या लेना. ये 4 शब्द है. मूर्छित, वासित, रंजित न परिणित, 4 शब्द है. क्या किया? जिसको स्त्री देखने से अभिलाषा है, रुचि है, रस है, प्रेम है. सूरदास क्या था? सूरदास मत में वो सूरदास है ना, सूरदास भगत हो गया. सूरदास तो इतना गिरधी था कि वेशा ने ते गई, रास्ता नहीं था, मेड़ी मकान था बड़ा, तो सर्प लटकते, सर्प. तो ये जनी दूरी है, पकड़ कर अंदर गई. गिरधी ने कहीं खबर न रही. पीछे उसको, अरे रे यार क्या हुआ? पीछे तो उसने आंख फोड़ दिया. एम क्या देखने में पर आंख फोड़ने क्या है? अंदर में रुचि छोड़ना, आंख फोड़ना, ये तो भले आंख हो ऐसे नहीं चले. अंदर नो रस जो उत्पन्न, प्रेम उत्पन्न होता है, ये छोड़ना है. और हाथ स्त्री आदि सुंदर को देखकर अंदर में वीर्य में उल्सित, प्रेमा आकर्षित થઈ જતા है. ये रुचि को नाश करना है. आंखों फोड़ने में क्या है? समझ में आया? इसे आंखों फोड़ी ना सूरदास साथ. ये रात तो रही, आंखों फोड़ी क्या है? तो माटी है, दौड़ है. उसके रोकने वाले आंखों तक पहुंचने वाला स्त्री रूप ने देखने की अभिलाषा थी उत्पन्न हुआ. मुख विकार, स्त्री का मुख विकार हो, स्त्री का मुख विकार देखने से विकल्प की जाड़ जो उत्पन्न होती है, ये न करना. ज्ञानी को ऐसा होता. आसक्ति दूसरी चीज है, उसका रस की दूसरी चीज है. क्षय संकीर्ति हो, स्त्री का रस की रुचि छूट गई हो, छता विषय हो, ये आसक्ति है. ये जातनी अस्थिरता आ जाती है, पर दुख रूप लगती है. तो रस जो उसमें सारा हाव भाव देखकर विक्रम की जाल में पट के आत्मा को हाव मुख विकार, भाव, चित्त का विकार. हमारे हो स्त्री नो चित्त नो विकार दिखने शरीर ना नहीं. विभ्रम मुंह का टेढ़ा करना, मोढું જરી આડું કરીને આમાંને પ્રેમમાં નાખવું.
विलास नेत्रों के कटाक्ष, आंखनी कटाक्ष करवा स्त्रियों, ये स्वरूप विकल्प जालों कर एवं जिस विकल्प है ना उत्पन्न होना राग, ऐसे मूर्छित विकल्प जालों कर मूर्छित हुआ अज्ञानी, उसको भगवान अंदर में कैसे देखे? समझ में आया? ये 4 शब्द है। विकल्प जाणो कर मूर्छित एक शब्द પડ્યા રહ્યા है, વાસી જોઈએ ત્યાં मूर्छित અને रंजित વચ્ચે વાસી જોઈએ, वासी तो संस्कृत में है 4, मूर्छित, वासित, एमा वस राग में रंगाई गयो, वास हो गया एकला रस में, रंजित राग में रंजित हो गया, परिणित राग में परिणित हो गया। समझ में आया? संस्कृत 4 बोले, एक बार पढ़िया रहा है अर्थ में। विकल्प जालों का, विकल्प नहीं जाल, जैम करोड़ियो होता है ना, करोड़िया नहीं होता है, क्या कहते हैं, मकड़ी जाल निकलते, वो दृष्टांत है शास्त्र में कि मनुष्य होता है ना, तो 2 पगे मनुष्य, स्त्री परणे तो 4 पग हो गया, ढोर हुआ। और उसका लड़का होता है 6 पग हुआ, भमरा हुआ, भमरा समझते, छठ पग हो। और लड़का की स्त्री हुई 8 पग हुआ, मकड़ी को 8 पग होता है। ये मकड़ी પછી ચાર કાઢે, અમારે બાજુ નામ કરો, છોકરા નામ કરો, ઠેકાણા પડો, આને પણ અરે ને એમ નંબરી ગયો હે ऐसा दर्शन आते हैं। हाँ, कहते हैं कि अज्ञानी को पर में रंजित परिणित चित्त में ऐसा जिसका चित्त है, इसमें भ्रम का रहना कैसे हो सकता है? भगवान आनंद का स्वरूप प्रभु कैसे दृष्टि में आते उसको? अतीन्द्रिय आनंद का नाथ सम्यक दर्शन में जो अनुभव में आता है, ये आवा विकल्प जाला वाला के कैसे अनुभव में आए हैं? समझ में आया? आत्मार्थी को तो बड़ी इतनी माता, अपनी सरकी हुई बहन, छोटी हुई दीकरी है, माता बहन दीकरी सब है, उसकी माता तरीके देखते हैं, बहन तरीके देखते हैं, दीकरी तरीके देखते हैं, उसको स्त्री का राग रस ऐसा आता नहीं। ऐसा चित्त विकल्प जालों से मूर्छित, वासित, वसला रंजित, परिणित चित्त में ब्रह्मकार रहना कैसे हो सकता है? जैसे कि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे आ सकती है? एम भगवान आत्मा का रस અને स्त्री का विषय का रस एक समय 2 नहीं रह सके। एकत्रीस में गाथा में किया है कि विषय शब्द 31 में दिया है समय सार, जड़ इंद्रिया, भाव इंद्रिया और इंद्रिय का विषय। क्या तो देव गुरु शास्त्र पर इंद्रिय का विषय है, पर तीनों की रुचि छोड़कर अंतर में जा तारे आत्मा का अनुभव होगा। समझ में आया? इंद्री जीते आपने, पर लक्ष्य वाणी, पर भगवान, जड़ इंद्रिया सबका लक्ष्य छोड़कर तो इंद्री जीत्या उसने। जंग इंद्रियम झेणीता नान सहावधि गुणदी आदम, इंद्रिय ना विषय की रुचि छोड़ी, भगवान की वाणी की रुचि छोड़ी, पर बस भाई मार्ग बहु गवा से बापा। 31 गाथा में क्या है? जंग
इंद्रिय झीणिता, इंद्रियों ने जीतकर, अर्थात वितराग की वाणी ने वितराग અને स्त्री कुटुंब परिवार ये सब विषय है, इंद्रियों विषय है। तो इंद्रियों विषय को जीतकर अर्थात ते तरफ का लक्ष्य छोड़कर ज्ञान स्वभाव धियं मनुदि आदम, भगवान आत्मा को ज्ञान स्वभावे पर से अधिक नाम भिन्न जुदा अनुभवे, उसको जितेंद्रीय समकीर्ति कहने में आता है। समझ में आया? जो ત્યાં ऐसे लगे भगवान की वाणी, भगवान स्त्री कुटुंब ये सब इंद्रिय का विषय है। सबकी रुचि छोड़कर ऐसी बात है। वाणी सुनते हैं तो उसमें विकल्प आता है, भगवान का दर्शन करने से पर विकल्प आता, राग है। समझ में आया? तो ये विषय शब्द अपना स्व विषय सिवाय पर वस्तु, स्व विषय જે આનંદનો નાદ પ્રભુ, ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान જેમાં स्व विषय आत्मा आया, ये सिवाय पर विषय सब उसकी रुचि छोड़कर अपना आनंद का अनुभव कर, तेरे संकित होगा, तेरी शांति मिलेगी। આવી વાત મારે આકરી પડે, માણસને ઓલો વ્યવહારે ઉડાવ્યો હોય તો કે લે પેલા નહીં આવી, પીછે અભી આएगा व्यवहार राग नो, व्यवहार क्रिया कान नो जेने रस है ने, ये रागी को आत्मा नहीं प्राप्त होगा, ये पीछे आएगा अभी 22 में। एक चित्त में ब्रह्म विद्या और विषय विनोद ये दोनों नहीं समा सकते। जिसको पर विषय का रस प्रेम है, रस का अर्थ है कि ये ज्ञेय में एकाकार हो जाता है। रस की व्याख्या है आरती का समर्थ, जे तरफ लक्ष्य है क्या एकाकार हो जाता है। तो पांचेंद्रिय का विषय तरफ जो एकाकार है, ये विषय का विनोद, उसको विनोद आता है, अंदर रस पड़ते हैं, तो उसको ब्रह्म विद्या नहीं होती, यानी आत्मज्ञान होता। આવી વાત છે બાપુ। दोनों नहीं समझ सकते। जहीं जहां ब्रह्म विचार है, ब्रह्म नाम भगवान आत्मा का आनंद का ज्ञान है अंदर, वहीं विषय विकार नहीं है। दिशा फरी गई नहीं। व्यवहार का विषय पर तरफ लक्ष्य है અને निश्चय का विषय स्व ऊपर आश्रय है। जिसकी दशा में सम्यक दर्शन हुआ, इसकी दशा में दिशा स्व ऊपर है, અને व्यवहार आदि राग है, उसकी लक्ष्य पर ऊपर है। तो ये दशा रागी है, दशा राग की है, तो दिशा पर ऊपर है। અને जहाँ सम्यक दर्शन की दशा रागी है, तो उसकी दिशा स्व ऊपर है। આવી વાતો છે બાપુ, બહુ મારે અત્યારે ગોઠવી નાખ્યો મારે। સચ હતું નહીં, પરમ સચ પરમાત્માનું વીખી નાખ્યું। ત્રણલોકનો નાથ બિરાજે સંદર। समझ में आया? जिसके निमित्त चीज है उसकी तो नहीं। निमित्त शब्द देवगुरु शास्त्र भी उसका नहीं, बाहरी ठोका क्या रहा। और जिसका राग भी जिसमें नहीं, निमित्त का रुचि नहीं, राग की रुचि नहीं, एक समय की पर्याय की रुचि नहीं। समझ में आया? परमानंद प्रभु वितराग स्वरूप अणाकू आनंद नो अमृत नो कन प्रभु, वो तो अरागी सम्यक दर्शन विषय है।
समझ में आया? राग रहित दृष्टिनो ये विषय है। ये राग रहित दृष्टि में राग सहित दृष्टि बे एक समय में कैसे चले? पर में भी रस है, अपने भी रस हो जाए, ये नहीं बने। हाँ, समझ में आया? जिसको दूध पाक का स्वाद आया, दूध पाक समझे? तुम्हारे खीर कहते हैं, हमारे खीर दूध पाक दो प्रकार के। खीर इसको कहे कि शेर दूध में 9 टांग चावल, उसको खीर कहे, और शेर दूध में ₹1 चावल, उसको दूध पाक कहे। दो तुम्हारे खीर कहते हैं, हमारा 2 भाग पाते हैं जी। एक शेर दूध हो और ₹5 पर चोखा नाखे तो उस खीर कहते हैं, क्या उसमें बहुत कटा नहीं होता है। एक शेर दूध में ₹1 चावल तो करते हैं तो दूध पाक, और दूध पाक होता है, दूध का पाक। जिसको दूध पाक का स्वाद आया उसको राती ज्वार का फोतरा समझे, छिलका, उसका स्वाद नहीं आता। ज्वार 2 प्रकार की है, एक थोड़ी ज्वार समझते हैं, और एक राती ज्वार। हमारे तो सब अनुभव हो गए ना। एक फिर हम विठलगढ़ गए थे 76 में, વીરમગામ પાસે વિઠ્ઠલગઢ तो कोई वाणियाનું घर नहीं थी, તમે तो પછી ગમે ત્યાં भिक्षा ली। तो ये ऐसा मिला, लाल ज्वारना रोटी, मीठी न हो कहीं। गामड़ा में 76 की बात है, 76 की साल वीरमगाम गए थे, यहाँ से 4 क्षण गए थे, यहाँ थी मिला था। राती जारना रोटला समझे ने, रोटी दाल बाल साथ था, यहाँ थी छाछ ने रोटी, उसमें एक विश्वत निकल। जिसको लूटपा का स्वाद आया, इसको लाल जार का रोटी का स्वाद नहीं मीठा लगता है। एंड जिसको आत्मा का सम्यक दर्शन का स्वाद आया, उसको विषय का रस का स्वाद नहीं हाथ सकता लगता है। समझ में आया? विषय छोड़ी ने बहे माटे विषय रुचि गई, ऐसा नहीं है। जिसको राग की रुचि है, उसको विषय की रुचि है। कारण राग पर चीज है, पर विषय की रुचि है, स्व विषय की रुचि नहीं। समझ में आया? यहाँ ये कहते हैं ब्रह्म विचार है, वहाँ विषय विकार नहीं है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकते हैं। जहाँ विषय विकार है वहाँ ब्रह्म विचार नहीं। राग ज्ञानी को भी राग आता है, पर राग की रुचि नहीं, रस नहीं। ओ नौअखली नहीं देश गांधी गई थी। ये नौअखली में मुसलमान लोगों, हिंदू ने बहुत माता बहन को नग्न कर उसको नग्न करके रखे। माता 40 વર્ષની ઉંમર हो, लड़का 20 વર્ષની ઉંમર, બેને નાગા કરીને ભેગા કરે પૂરા મુસલમાનો। એ દીકરીઓ તો આંસુની ધારા હાલી જાય અંદરથી। આ જણેતા મારી માં, અરે આ શું કરે? પણ ઓલા મુસલમાન મારા એ હું પછી ગાંધી ગયા હતા ને, નોખલી ગાંધી ગયા હતા, એવા જોર કરતા મુસલમાન નગ્ન કરી અને બેન આમ નાગારે કે આમ ભીડ કરે, આમ હારા દીકરાને તેમ અરે આ જમીન માર્ગ આપે તમે સમાઈ જાઓ આમાં। માતા જણેતા એની સામે શું છે? આ નગ્નપણું શું હોય એની પાસે? ભાઈ વિષય તો છે એના, પણ નગ્નપણું માતા પાસે હોય, જણેતા પાસે। એને જેમ અંદર રસ ઉડી ગયો હોય છે ને, સમજ में आया? એમ ધર્મીને પરના વિષયનો રસ ઉડી ગયો સમજ। एम कहते हैं कि जिसको विषय का रस है उसको ब्रह्म का रस नहीं। ब्रह्म नाम आत्मा।
आत्मा ना आनंद का रस उसका विषय का रस होता नहीं है। हाँ। विषय नो रस होता नहीं हो, विषय होता है? रुचि नहीं, बात ही है। हम तो जावजी ब्रह्मचर्य अनंत बार पाया है, पर राग की रुचि है तो उसकी विषय की रुचि है। हाँ, क्योंकि राग का फल तो संयोग मिलेगा, पुण्य का फल। राग में प्रेम है अपने ત્યાં एक तख्ता स्वाध्याय मंदिर, जिसको पुण्य का प्रेम है उसको जड़ का प्रेम है। पुण्य છે ને આ બાજુ ચાકનો છે ખૂણામાં, पुण्य की रुचि उसको जड़ की रुचि है। समझते भाषा को गुजरती आ जाती भैया। पुण्य की रुचि उसको जड़ की रुचि है। अपना चाकड़ा है स्वाध्याय मंदिर में आ ખૂણામાં आ बाजू। हाँ, क्योंकि पुण्य भाव ये राग है, अचेतन है, जड़ है। उसका जिसको प्रेम और रस है उसको जड़ का रस है। भगवान आनंद नो नाथ प्रभु जेना अंश एक समय ना स्वाद आगो, इंद्रना इंद्रासनों पण सड़ा हुआ कुत्ता ने बिल्ली जैसा दुख लगे। यहां ये कहते हैं जिसका चित्त में स्त्री का रस पड़ा है, प्रेम और विकल्पनी चाल है, उसमें निर्विकल्प भगवान कैसे दृष्टि में आवे। समझ में आया? तो भाई धर्म ની રીત છે બાપુ। कहीं बालक होता है, बालक गर्मी ना दिन हो, गर्मी जेठ मास, પછી એને दूध બે पाया हो, दूध એમાં વિશેષ પાયા હોય તો શેરણા हो जाता है, શેરણા રસ પતળા। 12 મહિનાની 12 માસનું બાળક હોય અને શેરણું લઈએ ઠંડુ લાગે, ઠંડુ જોયું છે એ ચાટે। બાળક છે ને એને ક્યાં દૂધ બહુ પાયા માયો, એક વાર એક વાર બીજી એની માં આવીને પાયું કે મોટી માઈ ખબર નથી કાઢ પાયું છે, શેરણા हो જ અંદરથી। આ खिचड़ी में होता है ना, खिचड़ी करे ना, खिचड़ी कहते हैं तो उसमें घर में 2-4 भाई हो तो थोड़े मीठू नाख्યું પેલું, બીજી આવી જાણે નહીં નાખ્યો બીજી નાખે, ખાવું ઢોઢવા થઈ જાય। खिचड़ी होती है એવી ખારી પણ રાવે કોણ કીધું? ભૂલ થઈ ગઈ લાગે છે કે આપણે બાજુ વિચારે કે આપણે ભૂલ થઈ ગઈ તો આપણું માટે કોક નહીં બોલશો નહીં હમણાં। ભાઈ આ તમારી રમતીઓ બધી એમ ઓલા ડબલ દૂધ પાઈ શેરડો થઈ ઠંડુ લાગે ચાટે, એમ અજ્ઞાની વિષયના રસને ચાટે, એને આત્માનો રસ ઉત્પન્ન ન થાય એમ કે છે। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा अपना आनंद स्वरूप भगवान दृष्टि में कब आता है? ऐसी विकल्प जाल छोड़कर, शुभ नहीं विकल्प जाल पर छोड़कर। ये तो निर्विकल्प परमानंद प्रभु है। ऐसी चीज को जाने में राग का विकल्प उसके साथ काम नहीं करेगा। इन दोनों में आपस में विरोध है, ब्रह्म विचार और विषय विकार। हाव भाव विगुण विलास चारों का लक्षण दूसरी जगह है, इतिहासकार तो पर कर चुके हैं, दूसरी बात नहीं करा दो। 122 रागादि निज मन में परमात्मा निवास करता है। जिसके राग का रस नहीं और राग की रुचि नहीं, उसका आत्मा में आत्मा परमात्मा पता लगता है। ये कहते हो बहुत सरस बात है। परमात्मा अपना आत्मा हो, परमात्मा है ये नहीं। रागादि रही निज मन में परमात्मा निवास करता है।
अपना आत्मा हो परमात्मा था। 122 નિયમણી નિમલી નાણ્યમ નિવસે દેવ વણાઈ હંસા સરવરી લીણું जिम मोह ये हो परिवाही। दिलाते हैं परमात्मा ज्ञानियों के राग आदि मर रहित दृष्टि में से राग निकाल करके अपना शुद्ध चैतन्य प्रत्येक दृष्टि गई, राग आदि मर रहित निज मन में अनादि देव ये अनादि देव भगवान आत्मा अनादि देव है ये। પછી ગાથામાં કહે છે મૂર્તિમાં દેવ નથી ને ભગવાન અહીં છે। અભી ગાથા કહી ગયા 123 में એ તો શુભ ભાવ હોય ત્યારે દર્શન करना भाव इतना અને ત્યાં દેવ જ માની લે અને उसकी भक्ति से कल्याण हो जाएगा तो परमात्मा ત્યાં नहीं, परमात्मा तो आई है। देवालय में परमात्मा नहीं, ये तो आ गया कल नहीं योग सार में। तन मंदिर में देव जिन लोको देव देखंत देराમાં ભગવાન છે એમ દેખે લોકો, અહીંયા તો પ્રતિમા છે તથાપન નીચે દેવ તો આય હે। રાજા ભિક્ષાર્થે ભમે એવી જનને ટેવ માગે જ્યાં હોય ત્યાં ભગવાન આપજે, ત્યાં ભગવાન ત્યાં છે। સેતુનું જે છે ભગવાન, સેતુનું જે છે સમિત શિખર છે મંદિરમાં છે એ કે છે એ શુભ ભાવ હોય છે, પણ એ શુભ ભાવ છે પણ उसे कल्याण થઈ જાય ને आत्मा का भान हो उससे ये बात नहीं। भारी काम भाई खेचा था चाहिए बोला स्थानक वैसी मूर्ति उसे भी नहीं सर आ लोग कोई मूर्ति में धन मन विद्युत समझ में आया। स्थानक वैसी है ना मूर्ति उड़ा दी नहीं मन तर आ लोग मूर्ति ऊपर मुगाट में हार फूलनी माला हार में है पैसा वाला हो तो देव भगवान ने क्या है, भगवान पास पैसा है वो पैसा वाला चढ़ावे एम के नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं होती नहीं। काल एक मान रहा तो भाई आप દિગંબર હતા ને 2-3 જણા ગયા છે ડોસાના હતા એમ કે મારે આરતીનું બોલાય છે એ દિગંબરમાં એવા નથી, આરતી બોલાય છે ને પૈસાનો કીધું એ તો પૈસાનો મોહ ઉતારવા માટે છે બાકી વાત આરતી ગમે તે થાય છે ભગવાન એમ કે પૈસા આ તો મોટો દિવસ હોય મોટા એમાં ખાસ આરતીના પૈસા બોલાય છે એક કાલે જવાના થાય ડોસા હતા ડોસા વાત સાચી બધું ખ્યાલ છે। આરતીમાં પૈસા ને મોટા દિવસમાં એને બોલાય કે ભાઈ આ 25 માં 50 એ તો એક જરી રાગ ઘટાડવાની વાત છે, બાકી તો ગમે તે માણસ પૈસા વિના એવું કરી શકે એ શું ભાવ છે ને ત્યાં ક્યાં। પણ અહીં તો કે છે કે ત્યાં દેવાલયમાં દેવ નથી, દેવ તો અહીં હે। એ કે છે હમણાં दूसरी बात नहीं यार अनादि देव आराधना योग शुद्धात्मा है। अरे अनादि देव शक्ति आनंद आनंद नाथ प्रभु ये तारो देव शुद्धात्मा ये तारो देव है, ये आराधना लायक है, ये सेवन करने लायक है, यानी सन्मुख थઈને લીન કરવાને લાયક છે। शुद्धात्मा निवास कर रहा है। जैसे मानस सरोवर में, मानस सरोवर है ना डीडी बारिक सरोवर है, लीन हंसला मोती का चारा चरते हैं क्या। मानस सरोवर में मोती होता है सच्चा, और ये हंसला मोती का चारा चरते हैं। एम भगवान आत्मा हंस बसता है। हे प्रभाकर भट्ट मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। क्या कहते हैं
કે ભગવાન આત્મા રાગ રહિત થઈને દેવ का आराधन अंदर करे तो भगवान क्या मालूम है, ऐसा मेरे दिखते हैं। परमात्मा तो यहाँ है अंदर। समझ में आया? वो व्यवहार है, ऐसा आता है दर्शन, देव दर्शन अपनी व्यवहार है। उससे हम मान दे क्या धर्म हो गया, ऐसे नहीं। तो ये बात है। समझ में आया? बार मैंने एक हमेशा बस चित्र में जो यात्रा करवी कि समित से करी, एक बार मैंने एक यात्रा करी साहब अपना कल्याण थी। एक बार वंदे जो कोई आते ये तो जेने भगवान ने प्रति प्रेम से नहीं करे तो इन्हें पुण्य बंधता है। एक नर्क में तो न जाइए पवे, इतनी बात। पर उससे उसका स्वर्ग नर्क में जाना अटकी जाए, स्वर्ग चुभिए। बापू त्रिलोक नो नाथ हंस तो अंदर बिराजे છે। ये आवे भजन में आवे वो वांचेलू घणું પેલા ને હંસલો નાનો ને દેવ જૂનું રે થયું, આ દેવો તરી જૂનું રે થયું રે દેવ જૂનું થયું મારું હંસલો નાનો ને દેવ જૂનું। राग तो गयो ने शरीर जीर्ण हो गया। राग का जीर्ण किया नहीं, शरीर जीर्ण हो गया। 90-150 महाप्रभु अंदर हंसलो विराजे है, जिसको राग ने भगवान आत्मा की भिन्न करने की ताकत रखते हैं, पर की जरूरत उसको है। हंसला जैसे दूध ने पानी में चांच नाचते हैं तो दूध ना खोपड़ा हो जाता है, पानी निकल जाता है। भगवान हंस अपना आनंद स्वरूप में एकाग्रता होता है, राग रूप पानी छोटा पड़ जाता है। समझ में आया? આવી વાતો છે। લોકો કે નીચે છે, નીચે એમ કરીને મારા, પણ નીચે એટલે પરમ सच्चा है। व्यवहार तो उपचार है, बीच में आता है, ये तो उपचार है। જ્યાં જ્યાં જે જે योग છે તਹਾਂ સમજવું તે ઈશ્વરનું વાક્ય છે। मानस सरोवर में हंस लिंग वसता है अंदर, हम कहते हैं। समझ में आया? ये सरोवर मानस सरोवर हंस होता है ना, ये जुआर बाजरा न खाए, ये हंसला तो मानस सरोवरना मोती चणे। एम ज्ञानी राग ने भोगवे नहीं नीचे से। ये तो बाजरा जुआर है, आत्मा ना आनंद ने अनुभवे। मारी बात मारी आ गई है नहीं तो खबर नहीं। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। ગાથા 121 નો વિસ્તાર પૂરો થયો અને ગાથા 122 નો કેટલોક ભાગ કર્યો છે। શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। સુખધામ અનંત